Yes, how many Types steps are of there? problems. Types of types. Okay, one by one, you can tell me the answer. So first thing that we have covered in both lecture, previous two lectures is starting from what is the definition of problem. That is, what is actually problem when we are solving that problem with respect to any. It can be programming, it can be mechanical problem, it can be civil problem, it can be any other problem. Okay. Then we have we have learned different steps to solve that problem in everyday life. So, can anybody tell me those 6 steps one by one? Hello, can anybody? Yes, sir. Tell me. First will be to identify what is the problem. Yes, Second will be to understand it. yes, Uh, correct. Third step will be finding the alternative ways to solve Yes, the problem. yes, Um, perfect. Fourth one will be out of those alternative solutions, you have to select one, Yes, which is the best, obviously. And yes, yes, then fifth will be listing the instructions yes, for that will that be helpful solution. to solve the problem. Yes, perfect. And then last is evaluating, solution Yes, evaluation. yes, yes, yes. Very nice, Arya. That is Thank perfect you. answer for that specific question. Then we have covered the one topic, that is types of problem. So anybody can tell me what are 2 types of problems? Algorithmic and Arithmetic, heuristic. Yes, yes, yes. heuristic. Algorithmic and heuristic approach. And the approach that is used by computers are algorithmic approach. On that Algorithmic. we will, yes, yes, yes. So next topic that we have seen is what? Difficulties with problem solving. So anybody can tell me what are difficulties with problem solving? Lack of experience, Yes, lack of experience. Then next. incorrect definition, Yes, perfect. Invalid logic. Yes, invalid logic, the perfect. Do not understand the problem Yes, correctly. perfect. Yes, yes, yes. Inadequate problem solution, that is one of the one is there. Okay. So these are different difficulties with respect to problem solving with any type of problem. Then one thing that we have seen, how to solve problem with respect to computers. So that part also we covered. So how many things that we have covered in that topic? How to solve problems with respect to computers? I think total 5 steps are there. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, First sir. one is anybody? First one is what? Solution. Yes, Problem solution. definition phase. No, problem definition phase is one of the that problem solving aspect. I'm asking about problem solving with computers. So in that case, what is the first thing is solution. Okay. Solution, Yes, we have to find program, out. Yes, program. Third one is result, Result. Result, result. Fourth one is testing testing, Result, and testing, and documentation. and documentation. documentation. Yes, documentation. yes. See, these all 5 steps actually we are using for any type of. If you are doing the project in mechanical field also, if you are doing the project in civil field also, if you are doing the field in programs, product development in your ENTC code branch also. So all these things are same. Instead of program, you are doing implementation of that specific or development of that specific hardware part or anything that you are implementing for that specific. But other things are there. Testing is there, results are there, then solution is there, and documentation is obviously there. For each and every product, you have to uh, make a user manual for that specific product. Okay, that is the minimum thing that is required for any. We can also call it as a software development life cycle भी बोल सकते हैं, but जैसे कि software development cycle में क्या होता है, we are starting with communication from that customers, then we are getting the requirements from that customers, then we are make a design for that requirement that we have done, then we have to start the implementation of that requirements uh, uh, for that design that we have implemented for that specific requirement, and then we are go for testing, and last one is what? Deployment. That is, we have to deliver that product to that specific customer. Again, last one thing is also there, maintenance part is there. After delivering the product, some changes will be there. Obviously, some changes will be there from customer point of view.
So that is a life cycle that we have to follow. So ये problem solving with computer भी वैसे ही है. Simply वहाँ पे कैसे वो उस customer वगैरह that things will be not there. So that is nothing but problem solving with respect to computers. Next problem solving aspect. What are those? Anybody? अभी किसी ने बताया था problem definition phase. Anybody? Tell me. So obviously first thing is what? Problem solving, problem definition phase. Second one is what? Getting started on a problem. Third one is what? Use a specific exams. Yes. Fourth one is what? Similarities among the problems. Those are already solved. Next one is working backward from the solution. That is, we have to divide that specific problem into sub problems and try to solve that sub problems with respect to that specific the solution that you have find for that specific problem. Okay. And then last topic that we have covered in last lecture is problem solving strategies. Now anybody can tell me how many problem solving strategies and which are those? Trial and error. Yes, trial and error is one of the thing that we have seen. First one is what? Divide and conquer. Yes, divide and conquer, and second one is dynamic programming. अभी divide and conquer तो सबको पता है मैंने, उसके नाम में उसका मीनिंग है जो प्रॉब्लम आपको मिला है तो उसको क्या करना है, सब प्रॉब्लम में उसको डिवाइड करना है और वन बाय वन लॉजिक अप्लाई करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. उसके बाद उसको जो भी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला है उसको हमें क्या करना है, कोरिलेट करना है, देन वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन. जो सॉर्टिंग मेथड्स जब आप अभी सिविल में नहीं है, सिलेबस में बाद में, बट यू विल. हाँ. So then is it like dividing the program into classes, what we used to do in object-oriented programming? No. That in program we are dividing into classes, but if you consider the modules, for example, you program one thing is there, that is in program you are dividing that specific logic. Okay, but if you want to for complex projects, for complex what we required, we have to make a one different program. That is one in a single program we are not doing same thing. That is for example जो आपको मैंने ये बताया था, एक लॉजिक सिंपल एग्जांपल बताया था. कोई भी एप्लीकेशन देखो, फॉर एग्जांपल यूर ERP, आप ERP में देखो लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स आर देयर. तो वो मॉड्यूल एक ही प्रोग्राम में नहीं किए, वो क्या किए, उसका डिफरेंट प्रोग्राम्स आर देयर. अभी आपको मैं 4 चैप्टर सिखाने वाला हूँ, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स. तो फंक्शन मॉडल में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम मैंने किया है, उसके अंदर मैंने दूसरे प्रोग्राम को कॉल किया है, तो लाइकवाइज वी कैन कॉल इट एज व्हाट, सब मॉड्यूल्स. अभी आप जो बोल रहे हैं क्लासेस का, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करें. गेटिंग आ रही है? हाँ, यस. हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस मतलब क्या, जैसे फंक्शन टॉपिक भी ऐसे ही है. फॉर एग्जांपल मेरे प्रोग्राम में 3 लॉजिक लिख रहा हूं मैं, और अलग अलग थिंग्स के लिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लॉजिक के लिए एक फंक्शन यूज किया, दूसरे लॉजिक के लिए दूसरा फंक्शन यूज किया, तीसरे लॉजिक के लिए तीसरा फंक्शन. लाइकवाइज यू कैन डू इट फॉर क्लासेस आल्सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. But with respect to sub problems, what we are doing the different program for that specific module 1, sub problem 1, sub problem 2, sub problem 3. और उस प्रोग्राम के अंदर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. गेटिंग? यस और नो? यस सर. ओके. एंड ट्रायल एंड बेसिस तो बताया मैंने, दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ टेस्टिंग. एंड उसमें क्या करते हैं जनरली हम, वी आर डूइंग द प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल एंड बेसिस. मतलब वी डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, मतलब फोर्सफुली कर रहे हैं हम वहां पे. जैसे कि मैंने बोल रहा है टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, तो टेस्टिंग में क्या कर रहा हूँ, रैंडमली कोई भी की वहां पे प्रेस कर रहा हूँ एंड गेटिंग वेदर व्हाट विल बी हैपन विद रिस्पेक्ट टू दैट सॉफ्टवेयर, दैट वी विल चेकिंग. ओके, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट डायनेमिक में क्या है. डायनेमिक और डिवाइड में आपको एक बताया कि डायनेमिक क्या करता है, डिवाइड वहां पे भी प्रॉब्लम डिवाइड ही होता है, बट इट विल फाइंड आउट द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम. और वैसे that is not the thing with divide and conquer. That is one of the disadvantage of that specific divide and conquer. सब जगह पे divide and conquer नहीं यूज कर सकते, but for that one solution is given dynamic programming. Okay, so that will be with वो second year के जो subject है आपके data structure, उसमें आपको पता चलेगा how that dynamic programming work and how that specific divide and conquer will work. Now we will go for move forward with respect to what next topic of that specific problem solving. 2 टॉपिक बचे हैं उसमें. So screen is visible to all? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So anybody having any doubt regarding the topics that we have covered up till now? Simple है वो, theoretical part है और सब मतलब something regarding that problem will be there. Okay.
सो हाँ, वन ऑफ द थिंग दैट वी हैव टू फॉलो विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग। अभी कैसे होते हैं, दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर। टाइप्स मींस कैटेगरी बोल सकते हैं, उसके अंदर उसको डिवाइड किया, कैटेगराइज किया। प्रोसीजर ओरिएंटेड, सी के पहले जितने भी लैंग्वेज के, यू कैन सी COBOL इज देयर, फोर्ट्रॉन इज देयर, ओके, then assembly language is there, all these are come under procedure oriented programming languages। उसके बाद एक हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक्चुअली पाइथन इज बोथ प्रोसीजर आल्सो एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आल्सो। फोर्थ चैप्टर के जितने भी हम कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने ऑल वे, दोज आर कम अंडर प्रोसीजर। एंड फिफ्थ चैप्टर अभी आपके एक्चुअली एग्जाम के लिए नहीं है और फॉर दिस सेमेस्टर सिलेबस में नहीं, बट आई विल रिवाइज इन वन लेक्चर दैट हाउ दैट what is that object oriented programming, what is classes, what is object, what are features of object oriented in one lecture when we are getting time। जैसे कि आपको भी अभी देखो लास्ट सेम के जो भी फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर के लिए सम लेक्चर्स आर ऑर्गेनाइज इन दिस और लास्ट वीक और दिस वीक में आपको होंगे, कुछ सब्जेक्ट के होंगे भी होंगे। M1 कंप्लीट हो गया होगा, यस और नो? सो लाइकवाइज फॉर PPS दिस सेमेस्टर सब्जेक्ट आल्सो फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट के लिए सेपरेट से लेक्चर अरेंज किए जाएंगे। उसमें आई विल टेल यू what is that object oriented programming, how that will be vary with procedure oriented, okay। so उसमें क्या होता है, एक होता है बॉटम अप अप्रोच और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जनरली टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच यूज होता है एंड टॉप डाउन अप्रोच इज जनरली यूज फॉर प्रोसीजर। बट यहाँ पे दोनों भी यूज होते हैं, कहाँ पे, पाइथन में। तो बॉटम अप में क्या होता है, पहले हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ क्लासेस में ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जैसे कि हम वी आर डूइंग द व्हाट कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, सिविल को पता होगा कि वी आर मेकिंग अ प्लान फॉर दैट बिल्डिंग। एक प्लान करने के बाद वी कैन मेक नंबर ऑफ बिल्डिंग ऑन दैट स्पेसिफिक सेम प्लान, ओके। लाइकवाइज क्लासेस विल बी देयर, वी कैन मेक अ क्लास ऑफ दैट one class will be created and n number of object will be created। सो ऑब्जेक्ट पहले कॉल होता है, मतलब पहले क्लास क्रिएट करते हैं, उसके नीचे हम ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट व्हाइल वी आर कंपाइलिंग दैट कोड, वो ऑब्जेक्ट चेक करता है वेदर ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। सो नीचे से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इट एज अ बॉटम अप अप्रोच। और टॉप डाउन में क्या है, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी प्रोग्रामिंग करने वाले a = 5, b = 5, c = a + b, दीज आर 3 इंस्ट्रक्शन आई हैव रिटन। तो पहले a = 5 वो कंसीडर करेगा, देन b = 5, देन c = a + b एंड देन प्रिंट c लाइकवाइज। सो तो टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच होता है। पर उसमें भी क्या है, समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि सम स्टेप्स आर देयर। तो फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। अभी ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया अभी तक, डिवाइड एंड कॉन्कर में भी वही देखा। उसके बाद जो स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्ट देखे थे उसमें भी बताया था मैंने कि इफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट प्रॉब्लम इज देयर वी हैव टू डिवाइड दैट प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो ऑब्वियसली टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच है, बॉटम अप हो, उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को डिवाइड करना ही पड़ेगा हमको इफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इज देयर। और सिंपल भी होगा तो उस केस में भी जनरली नहीं करते हम, बट यू वांट यू कैन डिवाइड इट इनटू सब प्रॉब्लम्स, ओके। Second one thing that you have to remember, choice of suitable data structures। So choice of suitable data structure। अभी जब हम स्टार्टिंग करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग आफ्टर 2 लेक्चर्स, ये लेक्चर और उसके बाद एक लेक्चर होगा जिसमें बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप्स। अभी ऑब्वियसली when you are writing the program you have to perform the operations on something। so what is that something is there, कहाँ पे operations करेंगे हम, एनीबॉडी? हेलो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए हमें? हेलो, हेल्प मी सर कंपाइलर चाहिए। नो, कंपाइलर इज वन ऑफ द पार्ट। यस, कंपोनेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं हार्डवेयर प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, यस। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कर रहे तो हमें सॉफ्टवेयर के लिए क्या चाहिए, प्रोग्राम कर रहे तो अभी डेटा चाहिए। जैसे आपको मैंने बोला राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, तो ऐड 2 नंबर्स के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या लेना पड़ेगा आपको प्रोग्राम में? 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे ना, ऐसा? मिनिमम यस, सो दैट इज नथिंग बट डेटा। अभी डेटा स्ट्रक्चर इज 1 पॉइंट अबव, एक स्टेप अहेड है डेटा टाइप के। मतलब डेटा टाइप कैसे, जनरली a = 5 लिखा तो एक वेरिएबल में हमने एक नंबर स्टोर किया, p = 5 लिखा तो एक वेरिएबल में मैंने एक नंबर स्टोर किया। बट इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन सिंगल वेरिएबल, तो उस टाइप में डेटा स्ट्रक्चर का वहां पे रोल आता है, जिसमें हम लिंक, यस, एरे होता है। पर यहाँ पे एरे नहीं यूज करते पाइथन में, हम यूज करते हैं लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी।
and set. These are the 4 things that we have to use. Stack is there, queue is there, but अभी data structure आपका separate subject will be there in your second year. जो आपको मैंने starting में बताया था कि fundamentals of data structure will be there. तो वहाँ पे आपको thoroughly आपको क्या देखना है? What are different data types? What are different data structure? How data will be how the operations on data will be performed by using different algorithms and different techniques. So choice of suitable data structure is very important. जैसे कि मैंने आपको बोला कि write a program to perform operation to check whether find out the even numbers from their given 1 to 15 numbers. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो आप लिस्ट लेके कर सकते, नहीं तो वहां पे नंबर बोला है तो अगेन वहां पे एक थिंग आती है कि विच टाइप ऑफ नंबर, इट कैन बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और डेसिमल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स. So that is one of the choice. That is choice of suitable data structure is one of the important thing. अभी आपको बोला है कि regarding take a input as a name and perform operations take a input from as a name of your student database. वहाँ पे input name लेना है. तो name के लिए आपको data type क्या लेना पड़ेगा? String लेना पड़ेगा. You cannot take a data type as a integer. So that is one of the important thing while you are writing the program. कि आपको पता होना चाहिए कि integer के लिए Python programming या any other programming में क्या data type दिया है. फ्लोट के लिए कौन सा डेटा टाइप दिया है, उसके बाद मोर देन वन डेटा टाइप मोर देन वन डेटा स्टोर करना है, मतलब 5,6,7,8 9 थिंग, तो वो सिंगल वेरिएबल में डायरेक्टली नहीं स्टोर, उसके लिए आपको लिस्ट लेना पड़ेगा, तो वो भी देखने वाले. सो सुटेबल डेटा टाइप की डेटा स्ट्रक्चर की चॉइस भी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर राइटिंग द कोड. सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप. अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप कहाँ पे आता है कि जैसे कि मुझे क्या करना है, एक सिंपल आप चीज बताता हूँ. हम जब भी प्रोग्राम करते हैं, बेसिक प्रोग्राम जब देखते हैं कहीं कोई भी प्रोग्राम, तो वहां पे होता है डिस्प्ले एनी मैसेज ऑन योर आउटपुट स्क्रीन, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने कुछ तो मैसेज डाला, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड मुझे डिस्प्ले करना है, पर मुझे करना है एक बार, तो मैंने लिखा सिंपली प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, तो वो प्रिंट, और जब प्रोग्राम रन करूंगा तो प्रोग्राम आउटपुट डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड. ओके, बट आई वांट टू डिस्प्ले दैट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? Anybody? How many times I want to display that hello world? 10 times. But उसके लिए मुझे मतलब मैं कर सकता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट 10 बार लिखूंगा, but that is not a proper way of writing the code. मतलब that is technique is also correct, but that is 10 लाइन का कोड की जगह पे हम 2 लाइन में जब हो रहा है वो कोड, तो क्यों नहीं करें? तो उसके लिए लूप्स यूज करते हैं हम. तो लूप का टॉपिक सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. तो फॉर लूप मैंने सिंपली फॉर लूप डाला, एक कंडीशन डाला i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल टू, मतलब सी के पॉइंट ऑफ पाइथन में अलग है वो सिंटैक्स, i लेस देन 10 डाला वहां पे, तो 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक जाएगा, अंदर लिख स्टेटमेंट लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो लूप 10 तक जाएगा, 10 के लिए वो कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट किया हमने. ओके, सो लाइकवाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट while you are choosing you are writing the code for that specific problem. Okay, अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप के रिगार्डिंग बाकी के तीनों चीजें देखो नीचे लिखा है. एस्टेब्लिशिंग इनिशियल कंडीशन फॉर लूप्स. ऑब्वियसली आपको लूप आपने सेट किया, आपने लूप यूज किया है, तो ऑब्वियसली वहां पे इनिशियल कंडीशन आपको चूज करना पड़ेगा. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक लूप के अंदर एक वेरिएबल है i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 10 सेमीकोलन i प्लस प्लस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट i इज इक्वल टू 0? इनिशियल कंडीशन ऑफ दैट स्पेसिफिक लूप. मतलब मैंने बोला कि आपको 10 बार एक वैल्यू प्रिंट करना है, मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने i की वैल्यू 0 लिखी, तो वहां पे i लेस देन की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी आपको? 10 लिखनी पड़ेगी. यस और नो? यस और नो? बिकॉज 0 से स्टार्ट करेंगे तो कब तक चलेगा वो लूप? 9 तक. मतलब 9 तक हमारा 10 बार वो प्रिंट हो चुका होगा, और हमें एक बार फॉल्स भी करना है, लूप को स्टॉप करना है. तो लूप को स्टॉप करने के लिए कंडीशन क्या लिखा है? i लेस देन 10. और i प्लस प्लस किसके लिए लिखा है मैंने? फॉर विच पर्पज आई हैव टेकन दैट i प्लस प्लस? बाद में लूप देखेंगे तब आपको पता चलेगा. यस, i की वैल्यू 0 है ना, उसको 1 करना है मुझे, तो उसके लिए क्या लिखा है मैंने? i प्लस प्लस है. i इज इक्वल टू i प्लस 1 भी कर सकते हैं. i प्लस प्लस अभी यहाँ पे पाइथन में नहीं यूज होता, सी में यूज होता है, सी प्लस प्लस में यूज होता है. पाइथन में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता नहीं, हो बाद में बताऊंगा. तो इनिशियल कंडीशन वहां पे इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने i इज इक्वल टू 1 लिखा, तो वहां पे मेरी कौन सी कंडीशन चेंज होगी? लेस देन वाली कंडीशन. तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? i लेस देन 11 करना पड़ेगा. यस और नो? यस और नो? और क्या कर सकता हूं मैं? i लेस देन इक्वल टू 10 भी कर सकता है. यस और नो?
Yes. Yes, sir. कर सकता हूँ ना? Yes, sir. Okay. Yes. So that is also one of the important thing while you are writing the code. Establishing construction of loop, establishing the initial condition for that loops. अभी उसके बाद फाइंडिंग द इटरेटिव कंस्ट्रक्ट. अभी फाइंडिंग इटरेटिव कंडीशन में जो आपको मैंने सेकंड पार्ट बताया i लेस देन 10, मतलब i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस. इटरेटिव कंस्ट्रक्ट मतलब वो लूप कंटिन्यूअसली रन होना चाहिए. मतलब i इज इक्वल 0 से स्टार्ट होगा तो i की वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो i की वैल्यू 1 होने के लिए क्या मैंने क्या किया था, वहां पे स्टेटमेंट क्या डाला था, i प्लस प्लस. अभी आप ओरली बता रहा हूँ, जब हम प्रोग्रामिंग करके देखेंगे रिगार्डिंग सेकंड चैप्टर फॉर लूप, और वहां पे आपको प्रोग्राम के थ्रू आपको डायरेक्टली पता चले. बट यहाँ पे थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज फाइंडिंग द इटरेटिव कंस्ट्रक्ट. तो 10 बार आपको लूप यूज रन करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते जाना पड़ेगा. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 लाइकवाइज. और जब ये वैल्यू 10 होगी तो वो लूप स्टॉप होगा ऑब्वियसली, बिकॉज. तो लास्ट पार्ट क्या लिखा है, टर्मिनेशन ऑफ लूप. टर्मिनेशन ऑफ लूप कहां पे होगा, i लेस देन 10 के लिए टर्मिनेशन ऑफ लूप होगा. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? यस और नो? हेलो? Yes, sir. All of you getting with the how to that top down design approach will be working. तो पहले आपको बेसिक थिंग क्या कर रही है, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है. सेकंड थिंग, यू हैव टू टेक अ सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर. थर्ड थिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहां पे आपको मोर देन ए वन थिंग यू हैव टू रिपीट मोर देन वन टाइम्स. ओके, वहां पे मेन थिंग क्या आती है, एस्टेब्लिशिंग इनिशियल कंडीशन. उसके बाद फाइंडिंग इटरेटिव कंस्ट्रक्ट, दैट इज i प्लस प्लस या कोई भी आपको करना है. टर्मिनेशन ऑफ लूप्स. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? Yes, sir. Okay, so we'll move forward. Now one important thing with respect to program design. तो प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोग्राम डिजाइन नहीं करते हम. when we are not following directly, we are not directly टाइप नहीं करेंगे. मतलब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट या तो you are not directly go for that program. Before that, simple program is there and there is no need to write algorithm or a flowchart. But complex projects are there, वहां पे डिजाइन पार्ट करना ही पड़ता है आपको, डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ते वहां पे कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन. मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन वहां से स्टार्ट होगा तो एंड तक क्या होगा एक्चुअली उसका फ्लो. सो डायग्रामेटिकल व्यू में आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए वेरी इजी इट विल बी. और एल्गोरिथम में क्या होता है कि जनरल आप लैंग्वेज में आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे. जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट थिंग दैट विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम डिजाइन टूल, 3 टूल्स होते हैं. एग्जाम में पूछेंगे आपको हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम डिजाइन टूल. तो वहां पे ऑप्शंस होंगे एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, सूडोकोड, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. गेटिंग? यस और नो? Yes or no? Yes, clear sir. all of you? How many program design tools are there? Algorithm, pseudocode and flowchart. तो उसमें से पहले हम देखेंगे algorithm. So algorithm क्या होता है? So algorithm is defined as a step-by-step procedure for calculation or problem solving. सिंपल है. आपके खुद के लैंग्वेज में आपको लिखना है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ऐसा ही लिखना है algorithm. You can use your own language for writing the specific algorithm. तो algorithm की definition क्या है? Step by step procedure for calculations or problem solving, or step by step procedure to solve any program. We can use algorithms. All of you clear with the definition of algorithm? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी सिंपल वन एक एग्जांपल देखेंगे algorithm का. जैसे कि मुझे क्या करना है, I want to write algorithm to send a message. तो क्या किया मैंने, step 1 लिखा unlock the phone, step 2 लिखा open menu and go to the messages, step 3 select option create message, स्टेप 4 नाउ टाइप द मैसेज एंड सेंड इट. अभी इसमें और एक स्टेप ऐड कर सकते हैं आप. टाइप द मैसेज कि पहले आप क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट द कॉन्टैक्ट टू विच वी हैव टू सेंड द मैसेज. यस और नो? हेलो? यस और नो? Yes, sir. सो लाइकवाइज यू कैन राइट योर एल्गोरिथम. सिंपल लैंग्वेज आपको क्या लिखना है, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी, फोर्थ क्या होगी, फिफ्थ क्या होगी. और हर एक का एल्गोरिथम लिखने का वे अलग अलग हो सकता है, बट वहां पे स्टेप्स आने चाहिए. स्टेप 1 इज मैंडेटरी, मतलब स्टेप 1 में तो वहां पे लिखना है आपको स्टेप 1 कोलन, स्टेप 2 कोलन लाइकवाइज, स्टेप 3, स्टेप 4 लाइकवाइज यू हैव टू राइट. जैसे कि अभी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे. फॉर एग्जांपल राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड. तो उस केस में क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या होगी बताओ मुझे. सिंपल ये ओन लैंग्वेज में लिखना है आपको, कुछ वहां पे प्रोग्रामिंग नहीं लिखना है कुछ. सिंपली यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप. स्टेप 1 क्या होगी मेरी, बताओ मुझे. Listing the numbers from
one. हाँ, लिस्टिंग नंबर है, डायरेक्टली यू हैव टू टेक वन नंबर ना, वी हैव टू रैंडम, हाँ यस. सो स्टेप नंबर क्या होगा, टेक वन नंबर टू चेक वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड नॉट. ओके, सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम, Dividing by 2. यस, टू चेक वेदर दैट नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2. इफ डिविजिबल बाय 2 and your that remainder is 0, 0. so what will be there, that number is even, otherwise that number is odd, and last में क्या होगा, display the result. Done. All of you getting how to write the algorithm? Yes or no? Hello. Hello. Yes, sir. जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ नंबर 2 में नंबर में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1 टू 1 क्या होगा, टेक 2 नंबर्स. स्टेप नंबर 2 क्या है, 2 क्या होगा, एडिशन ऑफ दैट 2 नंबर्स. स्टेप नंबर 3 क्या होगा, डिस्प्ले रिजल्ट. गेटिंग? यस और नो? ऑल ऑफ यू क्लियर विद द एल्गोरिथम, हाउ टू राइट द एल्गोरिथम? यस और नो? Yes, sir. ओके, सिंपल है, कुछ नहीं उसमें. उसके बाद वन स्टेप अहेड क्या होता है, सूडो कोड. अभी आप आइदर सूडो कोड लिख सकते हैं या आइदर एल्गोरिथम लिख सकते हैं, दोनों का. हाँ बोलो सर, एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ बोलो, हाँ देख सी. ओके ओके फाइन, थैंक यू सर. ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्चुअल प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल लिया. अभी यहाँ पे देखो, सूडो कोड और एल्गोरिथम, एक तो आप इफ यू वांट टू राइट सूडो कोड यू कैन राइट सूडो कोड आल्सो, यू कैन राइट, मतलब दोनों कंपल्शन नहीं है फॉर वन प्रोग्राम. यू कैन आइदर गो फॉर सूडो कोड और गो फॉर एल्गोरिथम. अभी सूडो कोड क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब क्या है, प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम के बीच में क्या आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब क्या हो गया, एनीबॉडी? हेलो. रफ कोड. यस, सूडो कोड मतलब यहाँ पे पूरा प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन भी नहीं रहते और कुछ पूरा एल्गोरिथम के कंसेप्ट भी नहीं है, मतलब पूरा थियोरेटिकल पार्ट भी नहीं था. जैसे वहां पे यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली लिखा ना, अनलॉक द फोन या टेक 2 नंबर्स, ऐड 2 नंबर्स, डिस्प्ले रिजल्ट. तो वहां पे कुछ हमने वेरिएबल्स कुछ नहीं लिया है. बट यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे पहले स्टेप 1 क्या लिखा है, स्कैन 2 इंटीजर्स ए एंड बी फ्रॉम यूजर. अभी इंटीजर यहाँ पे नंबर नहीं बोला, क्यों नंबर नहीं बोला यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू नंबर को प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं. एनीबॉडी, क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्कैन 2 इंटीजर्स ए एंड बी फ्रॉम यूजर्स. एंड ए एंड बी वहां पे हम डायरेक्टली लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6. अभी सेकंड स्टेप ने क्या लिखा था, एल्गोरिथम में क्या लिखते हैं, ऐड दीस 2 नंबर्स, ऐड 2 नंबर्स दोज हु आर टेकन एज ए इंटीजर, एज ए इनपुट. अभी यहाँ पे क्या लिखा मैंने, स्टेप 2 में सी इज इक्वल टू ए प्लस पी. जो इंस्ट्रक्शन हम डायरेक्टली कहाँ पे लिखने वाले हैं, प्रोग्राम में. और थर्ड में क्या लिखा है मैंने, प्रिंट सी. सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया मैंने, सम नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डायरेक्टली टोटली जो प्रोग्रामिंग में यूज करे दैट इंस्ट्रक्शन आई हैव टेकन हियर. और स्टेप नंबर 1 में क्या किया है हमने, ए एंड बी लिखा है, बट वो जो स्टेटमेंट लिखा है डायरेक्टली, स्कैन 2 इंटीजर्स ए एंड बी फ्रॉम यूजर्स. और स्टेप नंबर 3 में डिस्प्ले के रिजल्ट की जगह पे मैंने क्या लिखा है, प्रिंट सी, जिसमें हमारे एडिशन की वैल्यू स्टोर है. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? ऑल ऑफ यू नो गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द एल्गोरिथम एंड सूडो कोड? यस और नो? ओके, यस सर. ओके, तो यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखा है, हियर यू कैन सी स्टेप 2 and 3 आर एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ कोड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ओके गेटिंग. C is equal to A plus B and print C. Both are अभी यहाँ पे print C actually ब्रैकेट नहीं डाला है, but it is with respect to pseudocode it is valid. But जब प्रोग्राम में लिखेंगे तो print in bracket C लिखना पड़ेगा आपको. Print round bracket parenthesis open C, then parenthesis close. Likewise, आप जब प्रोग्राम देखेंगे तब आपको पता चलेगा. So anybody having any doubt regarding this? No sir. हाँ, तो अभी आपको होमवर्क क्या करना है, write a pseudocode, write a algorithm, pseudocode and flowchart for flowchart आप बाद में देखेंगे वाले, to check whether given number is even or odd. All of you getting the problem statement? Yes sir. क्या करना है आपको, ये तीनों प्रोग्राम डिजाइन टूल जो हमने आपको बताया मैंने अभी, algorithm, pseudocode and third one is flowchart. तो तीनों आपको इंप्लीमेंट करने फॉर टू चेक वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड. ओके, अभी थर्ड पार्ट आता है प्रोग्राम डिजाइन टूल में फ्लो चार्ट. तो फ्लो चार्ट क्या होता है,
पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अभी आप जब प्रोग्राम ये करेंगे, आप बी का प्रोजेक्ट करेंगे, एनीवन सिविल वाले होंगे या आप क्या होंगे, मैकेनिकल, ईएनटीसी या कंप्यूटर्स, ऑल हैव टू मेक अ डिजाइन फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ओके, अभी उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सम अदर डायग्राम्स आर देयर, क्लास डायग्राम इज देयर, सीक्वेंस डायग्राम इज देयर। तो आपके इसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर डायग्राम हो सकता है, कहाँ पे, सिविल में हो सकता है, या आपके मैकेनिकल में या ईएनटीसी में आपका सर्किट हो सकता है, यस और नो, यू हैव टू डिजाइन अ सर्किट, यस और नो। तो वहां पे आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। आप में अभी पीबीएल का वर्कशॉप हुआ ना आपका, यस और नो? नो सर। हेलो, नहीं हुआ है? Yes, sir. हाँ, आई थिंक एक डिवीजन का हुआ है, आई थिंक सी डिवीजन का ना, यस और नो? Yes, sir. हाँ, सिविल का बात। तो आपको सर ने सर्किट आपको दिया होगा, देखा आपने वहां पे कुछ पिन ऐसे लगाने वगैरह वगैरह, यस और एक्स वाई जेड दिया होगा ना। तो वो क्या है, वो हार्डवेयर आप जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर्स, दैट थिंग्स आर यू आर कोरिलेट विद ईच अदर, बट उसका डायग्रामेटिकल व्यू भी उन्होंने बताया होगा, यस और नो? सिमुलेशन में आपको दिखा होगा, यस। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, pictorial and diagrammatical representation of algorithm, or we can call it as a program, is called as flowchart. All of you clear with the definition? Yes or no? Okay. yes, sir. अभी flowchart ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल दिए, वही आपको यूज करना है। डोंट यूज अदर सिंबल्स, जो आपको मैं बता रहा हूँ वही यूज करना है। सी हियर, प्रोग्राम डिजाइन टूल के अंदर फ्लोचार्ट पे पहला सिंबल होता है राउंडेड रेक्टेंगल, और यू कैन यूज इलिप्स आल्सो। ओके, इलिप्स भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राउंडेड रेक्टेंगल। तो उसके वो किसके लिए यूज करते हैं, स्टार्ट एंड एंड, मतलब आपका फ्लोचार्ट स्टार्ट जब होता है वहां पे स्टार्ट लिखेंगे ना, उसको वो किसके अंदर लिखेंगे आप, विच सिंबल के अंदर लिखेंगे आप, एनीबॉडी? हेलो, अरे दिख रहा है वहां पे, दिख रहा है ना आपको, विच सिंबल? कर्व्ड रेक्टेंगल। हाँ, यस, कर्व रेक्टेंगल, और क्या कॉल्ड इज ओवल भी बोल सकते हैं, इलिप्स भी बोल सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग इज एरो। अभी एक सिंबल दूसरे सिंबल के साथ आपको कोरिलेट या अटैच करना है, मतलब दिखाना है, रिलेशन दिखाना है, तो उसके लिए एरो यूज करते हैं हम। उसके बाद पैरेललोग्राम, मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिस्प्ले, इनपुट लेना है आपको, टेक टू नंबर्स, तो वो किसके अंदर दिखाएंगे आप, पैरेललोग्राम। ओके, और जो रिजल्ट डिस्प्ले करना है वो किसके अंदर दिखाएंगे पैरेललोग्राम के अंदर दिखाएंगे। उसके बाद प्रोसेस करना है, मतलब आपको कुछ वो डेटा जो इनपुट ले उसके अंदर, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो किसके अंदर लिखेंगे हम, रेक्टेंगल। ऑल ऑफ क्लियर विद दिस, यस और नो? यस सर। ओके, उसे बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स। और लास्ट नहीं, एक्चुअली एक यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, सर्कल भी होता है, पर वो जनरली सारी जगह पे लगता नहीं है। सेकंड वन इज डिसीजन, दैट इज डायमंड। अभी डिसीजन बॉक्स, अभी एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द एग्जांपल, टेल मी द एग्जांपल ऑफ डिसीजन। आउटपुट लिखे यानी देखने के लिए नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बोल सकते। जैसे कि अभी मुझे डिसीजन लेना है, जैसे इवन और ऑड, इवन और ऑड में दो आउटपुट्स आएंगे ना, यस और नो? यस सर, इट इज नंबर यस इवन। सर। हाँ, तो इवन के लिए एक एरो दिखाएंगे और ऑड के लिए एक एरो दिखाएंगे, वो बाद में एग्जांपल में दिखाऊंगा आप कैसे ड्रॉ करना है वो। ओके, सो उस पर्पस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डायमंड यूज कर सकते हैं, डिसीजन बॉक्स यूज कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू, और लास्ट होता है सर्कल। अभी सर्कल क्यों यूज करना है, जैसे कि आप ड्रॉ कर रहे हैं फ्लो चार्ट, और वो फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का है, मतलब वो एक पेज पे वो नहीं ड्रॉ कर सकते आप, उसको सेकंड पेज पे कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के लिए आप यूज क्या कर सकते हैं, सर्कल यूज कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू यूज, सर्कल। ऑल ऑफ यू गेटिंग, यस और नो? उसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करने के लिए आप यूज करते हैं कनेक्टर, बोलते हैं उसको, सर्कल के लिए बोलते हैं कनेक्टर। तो सर्कल आप यूज कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद ऑल द सिंबल्स ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टूल्स? यस सर। यस, ओके। सो वी विल सी वन एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो पहले हमने क्या किया है, स्टार्ट किसके अंदर लिखा मैंने, एक तो डायरेक्टली इलिप्स लिखा है, उसके अंदर, उसके अलावा आप कर रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे इलिप्स यूज किया, ओके। उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है मैंने, इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2। तो ये क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, पैरेललोग्राम में क्यों लिखा, बिकॉज दैट इज ए इनपुट, यस और नो? यस सर। ओके।
अभी उसके बाद इनपुट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा आपको? प्रोसेस दैट इज रेक्टेंगल। तो क्या लिखा मैंने? सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। यस करेक्ट। उसके बाद अभी ये हो गया, हमारा ऑपरेशन हो गया। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट ना। तो उसके लिए अगेन मैंने क्या Output. लिखा? आउटपुट के लिए क्या लिया मैंने? Parallelogram. पैरेललोग्राम, प्रिंट सम। अरे अब ये प्रोसेस हो गया हमारा, 3 स्टेप्स में हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट में क्या करेंगे? एंड कर्व रेक्टेंगल। यस कर्व रेक्टेंगल। ऑल ऑफ यू गेटिंग विद दिस? यस और नो? यस सर। Yes, Okay. sir. अभी यही हम किसके, अब ये आपको मैंने ये किसके लिए करना है आपको? यही एग्जांपल विच व्हाट एग्जांपल आई हैव गिवन? इवन और ऑड। अभी इवन और ऑड में प्रोसेस बॉक्स लिख सकते हैं क्या आप? यस सर। Yes, हाँ. sir. नहीं, वहां पे डिसीजन करना पड़ेगा ना पहले आपको, इनपुट लेने के बाद। Is it even or odd के लिए? यस तो उसके लिए आपको कंडीशन डालने पड़ेगा। इफ डिसीजन बॉक्स लेना है उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? इफ गिवन नंबर इज डिविडेबल बाय 2 s देन व्हाट यू हैव टू प्रिंट नंबर इज Even No. number is नो होगा तो इवन नंबर इज ऑड। और इवन और ऑड का जो भी आपको रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम उस लास्ट में कहां पे जाएगा? एंड में जाएगा। यस और नो? यस यस सर। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट फ्लो चार्ट। उसका एक एग्जांपल आई थिंक बुक में दिया है, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, डायरेक्टली ऑनलाइन दिखा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिसीजन बॉक्स एल्गोरिथम फॉर, फिर भी आपको देखा और एक लार्जेस्ट और 2 नंबर। एल्गोरिथम नहीं चाहिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको? whether this flow chart is visible? यस सर। यस देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एक्चुअली स्टार्ट किया है, उसके बाद इनपुट लिया है a, b बराबर, यस और नो? यस अब सर। इसके अंदर उन्होंने इफ a ग्रेटर देन b, अभी यहाँ पे क्या किया ना, एल्स पार्ट वहां पे नहीं कंसीडर किया, तो उसने क्या किया है, s होगा तो क्या किया है, प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, और वो एरो कहाँ पे दिया है? डायरेक्टली कहाँ पे भेजा है? नीचे। end out. हाँ अब उसके अगेन उसके नो के बाद उन्होंने क्या किया फिर से? b ग्रेटर देन a, सो प्रिंट b इज ग्रेटर देन। अभी यहाँ पे इक्वल टू का कंडीशन नहीं हैंडल करना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? वो सेकंड डिसीजन बॉक्स की करे, यहाँ पे जरूरत है क्या? नहीं कर सकते, डायरेक्टली कर सकते हैं। इफ a ग्रेटर देन b, s a ग्रेटर देन b, प्रिंट b ग्रेटर देन a, यस और नो? डायरेक्टली एंड कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, यस और नो? बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इक्वल की भी कंडीशन हैंडल की है, इसलिए उन्होंने दूसरा भी ये किया, क्या किया है, डिसीजन बॉक्स लिया, वहां पे वो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि b ग्रेटर देन a होगा तो प्रिंट b ग्रेटर देन a, और नहीं होगा तो प्रिंट a इज इक्वल टू b, और लास्ट में तीनों भी कहां पे उन्होंने कनेक्ट किए हैं? लास्ट में Output. यस लास्ट में, सो स्टॉप किया उसने उन्होंने। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द डिसीजन बॉक्स एग्जांपल आल्सो? यस सर। सो अभी यही आपको एग्जांपल किसके लिए बोला है मैंने? Even or. इवन ऑड के लिए। तो ऑल ऑफ यू राइट एल्गोरिथम, राइट अ फ्लो चार्ट, सूडो कोड एंड राइट अ फ्लो चार्ट फॉर व्हाट? To check whether given number is even or odd. So all of you clear with this now? Any doubt? नो सर। Okay. So ये सिंपल है, इसके ऊपर डेफिनेटली वन क्वेश्चन हो, एक या दो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में रिगार्डिंग एमसीक्यू आल्सो। फ्लो चार्ट का विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर दिस, तो वो आपको याद रखने सारे सिंबल्स, गेटिंग सिंबल दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। और मतलब व्हाट इज सिंबल यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग? What is symbol is used for decision making? Diamond. Yes or no? Yes. So likewise, other options will be there. Okay. So this is all these topics are regarding the basics of problem solving. So अभी next lecture नहीं, अभी time भी है वैसे, तो introduction कर सकते हैं Python का। तो पहले रिवाइज करेंगे what we have seen in today's lecture first. Top down design ना?
Yes. So उसमें हमने देखा कि how to do the procedure to solve that specific problem with respect to program. So breaking the problem is sub problem is necessary if problem is huge or complex problem is there. Second one is choice of a suitable data structure is important. That is अभी आपको जैसे से आप प्रोग्राम करेंगे आपको पता चले कि मुझे इंटीजर लेना है या फ्लोट लेना है या कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है या व्हाट स्ट्रिंग लेना है या लिस्ट लेना है या टपल लेना है. Likewise, very important topic is very important thing with respect to programming. Construction of loop very important. If you are doing the complex project program, loops are very necessarily required. उसके बाद loop के regarding three things are very important. Establishing initial condition, find a iterate to construct. Last one is termination of loop is very important. जब हम सेकंड चैप्टर फॉर लूप देखेंगे while लूप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे कैसे वो लूप ट्रेस करेंगे, वन बाय वन ट्रेस करेंगे हम कैसे करना है वो. ओके. उसके बाद प्रोग्राम डिजाइन टूल्स वो तीन होते हैं. एक होता है एल्गोरिथम, सेकंड होता है सूडो कोड और थर्ड होता है व्हाट फ्लो चार्ट. एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू राइट अ प्रोग्राम और राइट एल्गोरिथम. सूडो कोड होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट सूडो कोड एंड एल्गोरिथम एंड Programming language and what natural language. We can call it as a combination of algorithm and program. ऐसे भी बोल सकते हैं. And last one is that flow chart. It is a pictorial or diagrammatical representation of algorithm or program. Is called as flow chart. उसके symbols सबको याद रखने हैं because exam में पूछ सकते हैं which of the following symbol is used for this likewise. And one example. अरे example एग्जाम में नहीं पूछते because वो ड्रॉ करना होता है तो obviously नहीं पूछेंगे. Okay. Then एक होता है पाइथन. ओके. सो पाइथन अभी ये हो गया बेसिक्स. अभी जितना भी देखा हमने बेसिक देखा रिगार्डिंग प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग. अभी ये जो बेसिक हमने अभी तक का देखा ना इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट कैन बी पाइथन आल्सो, इट कैन बी सी आल्सो, इट कैन बी C++ आल्सो, इट कैन बी PHP, इट कैन बी जावा, इट कैन बी .NET, इट कैन बी struts, it can be AngularJS, it can be anything will be there. So we require program solving skill. If you know the program solving skill, you can solve any type of program because programming क्या होता है जनरली सिंटैक्सेस होते हैं कि ये सिंटैक्स इसके लिए यूज करो, बट एक्चुअल सॉल्विंग जो होना है प्रॉब्लम सॉल्व करना वो आपको खुद को करना है. मतलब वो सिंटैक्स आपको इसके लिए यूज करना है वो दिया है, मतलब इफ लूप कंडीशन हैंडल करने के लिए, बट आपको इफ का सिंटैक्स पता है बट कैसे यूज करना है वही पता नहीं. So that is for that you have to work on that specific thing. For loop एक चीज मुझे 10 बार डिस्प्ले करने की फॉर लूप दिया है उसको, आपको पता है कि फॉर लूप यूज करना, बट उसके लिए पैरामीटर्स क्या लेने हैं, कंडीशन क्या लेनी है, दैट यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ. अब वो आपको आना चाहिए. And that is nothing but a problem solving skill. Yes or no? All of you clear with this? Yes sir. समझ में आ रहा है सबको अभी तक जितना पार्ट हुआ है हमारा? Yes sir. बिकॉज थ्योरेटिकली था. अभी प्रोग्राम जब देखेंगे तब आपको देखेंगे कि वन बाय वन हम चेक करेंगे कि कैसे प्रोग्राम रन होता है, कैसे वो आउटपुट स्टोर होता है या लाइकवाइज. ओके. ये पाइथन अभी बेसिक थिंग है. वी हैव टू सी द बेसिक्स ऑफ पाइथन इन फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट आर द फीचर्स, देन अदर थिंग दैट विल बी रिस्पेक्ट टू पाइथन हिस्ट्री क्या है. ये यहाँ पे जो सिंबल बताया दैट इज सिंबल ऑफ पाइथन लैंग्वेज. उसके बाद हाँ प्रोग्रामिंग बेसिक्स. अभी प्रोग्रामिंग बेसिक्स में यहाँ पे मैंने दिखा है देखो कोड और सिंटैक्स, सोर्स कोड, उसके बाद सिंटैक्स लिखा है, उसके बाद आउटपुट लिखा है, उसके बाद कंसोल लिखा है. ये चारों चीजें लगने वाली है हमें किसके लिए और विच पर्पस वी रिक्वायर दिस थिंग्स. एनीबडी? यस, राइटिंग एनी कोड वी रिक्वायर दिस ऑल थिंग, वी नो ऑल दीज थिंग्स. देखो कोड, सोर्स कोड क्या होता है, जो भी हम लिखने वाले प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे अभी सिंपल एक थिंग बताता हूँ. हाँ, ऑल थिंग जिनके पास नहीं है वो कैन यूज दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. JDoodle डालो आप गूगल में और सर्च करो JDoodle फॉर पाइथन 3 और सिंपली आपने JDoodle भी डाला तो आपको क्या होगा वो स्पेसिफिकली उसके ऊपर जाएगा और वहाँ पे तो अभी यहाँ पे वर्जन भी आते हैं देखो 3.51 कंपाइलर, 3.6, 3.65, 3.7. अभी करंट 9 भी है बट यू कैन ऐसे नहीं कि आप 9 यूज करना है, यू कैन यूज 3.5, एनीथिंग यू कैन यूज. अभी यहाँ पे सबको ये विंडो दिख रहा है क्या? Yes sir. हेलो. हाँ, जब आप sir. ये ऑन कर आप ब्राउजर में ये करेंगे, रन करेंगे JDoodle, मतलब सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा. एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पाइथन 3 चूज करके रखा था इसलिए वहां पे डायरेक्टली आ रहा है. पर जब आप सिंपली
JDoodle डालेंगे तो अब आपको दिखेगा कि सारे प्रोग्रामिंग के लिए आपको दिखेगा। अभी जो फर्स्ट टाइम ये कर रहे थे JDoodle सर्च करो, हाँ दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। हाँ क्या क्या दिख रहा है? जावा भी स्विफ्ट दिख रहा है, ऑनलाइन C++, SQL, ऑनलाइन C, हैश रनर, PHP, पाइथन और प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन MongoDB, ओके, ऑल थिंग्स आर देयर। तो जब यहाँ पे जब पाइथन डालेंगे तो पाइथन वहां पे आएगा डायरेक्टली, एक्चुअली सर्च करेंगे तो। JDoodle पाइथन यहाँ पे सर्च करेंगे तो ओके हो गया ओपन, ठीक है। सो अभी ये आपको करना है यहाँ। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल सी द कोड ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। यू कैन आल्सो यूज ऑनलाइन गूगल कोलैब, आल्सो यू कैन यूज, ओके। ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट यू हैव टू यूज, दोस डोंट हैव एनी कंपाइलर आपके पास अभी इंस्टॉल नहीं है, पाइचाम और एनाकोंडा आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। या अपन जनरली सिंपल प्रोग्राम है तो अभी राइट नाउ यू कैन यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, ओके। अभी सिंपल है। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि कोड और सोर्स कोड किसको बोलते हैं, तो वहां पे आगे क्या लिखा है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, कोड और सोर्स कोड। अभी यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी जो आपको मैंने बोला कि मुझे कुछ तो मैसेज प्रिंट करना है, तो आई हैव रिटन हियर हेलो फॉर एग्जांपल। तो ये हो गया मेरा कोड। क्या बोलते हैं इसको, मैं क्या बोला मैंने इसको, कोड, प्रिंट इन ब्रैकेट हेलो। प्रिंट मतलब कुछ तो आपको इसके ऊपर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, उसके लिए प्रिंट, वो बाद में देखेंगे क्या होता है प्रिंट, इनबिल्ट फंक्शन है वो पाइथन में। और जिसको रन किया तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। अभी ये सारी चीजें आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। आया यहाँ पे आउटपुट, ऑल ऑफ गेटिंग, ओके। हाँ तो अभी यहाँ पे, हाँ सी हियर सिंटैक्स, ये कोड हो गया, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड एज कोड। अभी सिंटैक्स, व्हाट इज सिंटैक्स, अभी जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे ना उसे बोलते हैं हम सिंटैक्स, व्हाट वी हैव टू कॉल इट एज अ सिंटैक्स। तो सेट ऑफ लीगल स्ट्रक्चर कमांड दैट कैन बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है डिस्प्ले करने के लिए, क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है, एनीबॉडी, सिंटैक्स क्या लिखा है मैंने, प्रिंट इन ब्रैकेट हेलो। हाँ अभी सिंटैक्स ने यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, एरर आएगा। क्या एरर आया मुझे यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ, EOF मींस एंड ऑफ फाइल व्हाइल पार्सिंग, मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो वहां पे एरर आ रहा है। और वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, फाइल JDoodle.py लाइन 2 क्यों देखा है, अभी कभी भी देखो आप प्रीवियस लाइन के ऊपर एरर होगा तो लाइन नंबर क्या दिखाता है, वो लाइन नंबर 2, ऑल ऑफ गेटिंग। तो एरर एक्चुअली कौन से लाइन पे होता है, वो लाइन नंबर 1 पे। अभी यहाँ पे कोड टोटल लाइन नंबर ऑफ लाइंस कितने यहाँ पे कोड में, एक ही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसने कहाँ पे दिखाया एरर, लाइन नंबर 2। अनएक्सपेक्टेड EOF फाइल पार्सिंग मींस क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। तो ये हो गया, तो दैट इज नथिंग बट योर सिंटैक्स। ऑल ऑफ क्लियर विद द व्हाट इज अ सिंटैक्स? यस सर। सेट ऑफ लीगल स्ट्रक्चर्स जो आपको पाइथन में बताए वही आपको देना है, अलग कोई भी यूज करना नहीं। सिंपल, अभी आपने जिन्होंने सी सीखा होगा तो उन्होंने प्रिंटफ यूज किया होगा, यस और नो? यस सर। हाँ तो यहाँ पे मैंने प्रिंटफ यूज किया, फॉर एग्जांपल देखो प्रिंटफ जैसे मैंने यूज किया तो वहां पे फॉन्ट चेंज हो गया, यस और नो? फॉन्ट चेंज हो गया ना? यस सर। हाँ पहले फॉन्ट क्या था इसका, एनीबॉडी? हाँ यस, पिंक कलर था। व्हाई पिंक? बिकॉज दैट इज अ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन गिवन बाय कंपाइलर पाइथन, यस और नो? अभी प्रिंटफ नहीं है उसके अंदर, प्रिंटफ नाम का कोई भी नहीं है, कीवर्ड ही नहीं है। अभी कीवर्ड देखेंगे हम, कीवर्ड कितने कीवर्ड होते हैं वो देखेंगे बाद में जब। तो देखिए यहाँ पे रन किया मैंने तो आपको एरर आएगा, नेम printf is not defined, yes or no? Getting? Yes sir. Why this error occur? Yes, All of it clear? Yes, sir. Yes or no? हाँ, so that is also Yes, one of the important thing. So syntax is also one of the set of legal structure and command that can be used in particular programming language. Third thing होती है output. The message printed to the user by program. अभी यहाँ पे आउटपुट क्या मिला था मुझे? एरर मिला था, पर उसके पहले कुछ तो आउटपुट मिला था ना? हेलो। Yes, hello is the output. So ये हो गया third part of that specific programming. So this is for here what is the output? Hello. और last one is console. What is the console? जो बैक स्क्रीन होता है ना, यहाँ पे दिख रहा है सबको ब्लैक स्क्रीन, जिसमें आप हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। Yes sir. हाँ, उसे बोलते हैं कंसोल।
और यही आप ओपन सोर्स में करेंगे, उबंटू यूज करेंगे, तब वहां पे होता है टर्मिनल. व्हाट वी हैव टू यूज? टर्मिनल. गेटिंग? आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा, कमांड प्रॉम्प्ट. विंडोज मशीन जिसने यूज किया, CMD डालेंगे तो ब्लैक स्क्रीन ओपन होता है. यस सर. हाँ, उसे हम कंसोल भी बोल सकते हैं. यस. और टर्बो सी में या C++ में आप जब टर्बो सी कंपाइलर यूज किया होगा, तो जब आप प्रोग्राम रन करते हैं ब्लैक स्क्रीन ओपन होता है. यस और नो? हाँ. यस, उसे बोलते हैं हम कंसोल. तो यहाँ पे भी ऑनलाइन में भी उन्होंने दिया ब्लैक स्क्रीन, उसे बोलते हैं हम कंसोल. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग? क्या क्या होता है एक्चुअली? हेलो? यस सर. यस सर. सो बाद में हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट में हम व्हाट इज पाइथन ये करेंगे, कंप्लीट करेंगे. किसने इन्वेंट किया, क्या था उसका हिस्ट्री, क्या, क्यों उसने उसको नाम दिया पाइथन, ऑल थिंग्स वी विल सी. ये सारी चीजें बाद में देखेंगे. कुछ फीचर्स देखेंगे. दिस इज द बेसिक्स ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. फीचर्स वगैरह, डेटा टाइप्स वगैरह, दीज आर ऑल द बेसिक्स ऑफ. सो अप टिल नाउ एनी डाउट? हेलो? अरे समझ में आ रहे हैं सबको? यस कुछ सर. डाउट है? फास्ट हो रहा है क्या? सर. सर. फास्ट नहीं हो रहा है ना? नो सर. नो सर. ओके. कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. आई विल सॉल्व योर क्वेरीज एनी टाइम. एनी मतलब आपको बाद में पर पूछना है, you can ask. Sometimes you can hesitate to ask the questions in lecture also, so you can ask question after lecture also. Okay, so any doubt? No, sir. Hello? Okay, so the topics that we have seen up till now, the basics हमने देखा. अभी प्रोग्रामिंग भी पाइथन के वहां तक भी गए हम, जिसमें हमने व्हाट इज एक्चुअली प्रोग्राम. तो JDoodle पे आप सिंपल है, क्या है, कभी भी आप मोबाइल ऑन करके आप ब्राउजर ओपन करो, उसमें डालो, एट एनी पॉइंट जहां पे भी होंगे आप कर सकते. उसमें लैपटॉप ऑन करने की जरूरत नहीं, या PC ऑन करना है, कुछ करना नहीं है. सिंपली यू कैन डू इट ऑन योर मोबाइल ऑल्सो. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. उससे क्या होगा कि आपके को कंसेप्ट है, तो जो मतलब आपको थियोरेटिकली पता है कि प्रिंट इसके लिए यूज होता है, एक्चुअली जब आप करके देखेंगे तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. ओके, यस और नो? हेलो? यस सर. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फीचर्स देखेंगे, पाइथन की हिस्ट्री देखेंगे, उसके वर्जन्स देखेंगे, और डेटा टाइप्स. इफ टाइम परमिट्स वी कैन स्टार्ट विद बेसिक प्रोग्राम. ओके, Yes, एनी sir. डाउट? ओके, नाउ यू गिव मी अटेंडेंस. फर्स्ट आई विल डायरेक्टली कॉल द नंबर्स. यू कैन B21, likewise you can tell me who are present or who are absent, or you can directly put it in your chat box. Okay, roll number 1. Present sir. Okay, roll number 2. Roll number 1 of B or C? You can B. Okay. Roll number 2 B, present sir. Okay, roll number 3. Present sir. C division. C division. Okay, roll number 4. B3 present sir. Okay, roll number 4. C4 present sir. Present sir. B. Okay, Present okay. sir. 5. Yes, 5 is present. Okay. 6. C6 present. Tell me. B06 present sir. Okay, okay. Sanket is present. 6. C6. Present sir. Those who are done with the attendance, they can mute yourself. And those who are done with the attendance, they can leave the meeting also. No problem. Okay. 7. Roll number 7. Present, sir. Sir, B division Okay. 42 Sir. present. B01 present sir. Okay. B8. B8. C8 present sir. Okay. C division. Sir, B Okay. division 42 9. present. 42, I will mark in letter. 9. B9 present sir. Okay. 10. B10 present sir. Okay, C10 also present. 11. B11 present sir. C11 present sir. Okay. 12. B12 present sir. C12 present sir. Okay. 13. B13. C13 present, sir. Yes. 14. C14 present sir. Okay. B14. B14, I think he tell me he is not there in lecture. Okay. Then 15. 15. B15 is not there. C is there. Okay. 16.
B16 present, sir. C16 present. Okay. 17. B17 present, sir. Okay. C17. Present, sir. Okay. 18. C18 present, sir. B18 Okay. present. Okay. Okay. 19. C19. B19. Okay. B9. Yes. Yes. 20. Roll number 20. B20. B20 present. Yes. C20. B20 present. Yes. 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 B20 present. Yes. Yes. C20. Okay. C20 absent. Okay. 21. Sir, B21 present. Okay. C21. Okay. Then 22. B22 present, B22 sir. present, sir. Okay. 23 C present. B. B23 present. Okay. 24. 24. C21 also present. 24 of B. Absent. 24 of C. Okay. 25. 25 of B present. Okay. 25 of C. Okay. 26. 26. B26 present, sir. Okay. 27. 27. Okay. 27 of C present. 27 of C. Okay. 28. B28 C28 present. C28 kore. Okay. 29. Sir, B28 present, sir. Okay. 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 C21 present. Okay. 30. 30. C30 present, sir. Yes. B30. B30 present, sir. Okay. 31. B31 present, sir. Okay. 32. B31 present. C32 present, sir. Yes. 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 33. B33 present, sir. Okay. B33. Yes. Yes. 34. B34 present, sir. Present. Okay. 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 35. C35 present. Okay. 36. B36 present, sir. Okay. 37. B37 present, sir. C37 present, sir. Okay. 38. Okay. 38 B present. C38 present. Okay. 39. Yes, C39 present. C39 present. Okay. 30. B30. 39. B39. B39 present. Okay. 40. 40. C40 present. Okay. Okay. B40. B40. 41 is present. B41 present. C41 present. Okay. 42. C42 is present. B42. Present. Okay. Present, sir. Yes. 43. Yes. Yes. 43 C present. 43 B present. Okay. 44 C present. 44 B present, sir. Okay. 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 45. Yes. C present. Yes. Yes. 46. B46 present, sir. Yes. 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 47. B47 present. Yes. B47. 47. Yes. 48. 48. 48 is present. 48. B48. Okay. 49. 49. C49 present. B49 present, sir. Okay. 50. 50. Sir, B50 present. Okay. B50 51. present. 51. 51. Okay. 52. C52 present, sir. 52. Okay. 53. 53. 53 of B. 53 of C. Absent. 54. C54 present. Okay. Okay. 55. B55 present, sir. Okay. 56. 56. B56 present, sir. Okay. 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 57. B57 present. Sir. Okay. 58. 58. B58 present, sir. B58. Okay. 58 C. Present, sir. Present. Okay. Okay. 59. 59. 60. Present. Say 61. 61. Okay. 62. C62 present, sir. Yes. 63. 63.
64. 64. C 64. 64 present. OS 65. 65. C 65. present, sir. Yes, 66. 66. So present. 67. 67. Yes, and 60 is I'm also present. present. Absent number I will tell. First C division 24, 27, 53, 58. Okay. B division 7, 14, 24, 27, 48, 53. 24 present, sir. 24 B. Okay, Sir, okay, okay. B 52 present. Okay. Okay. So we'll stop here.